बच्चे ना तुम्हारा परिवार लाइफ के अंदर, राइट? क्योंकि ये आ रहा है सबका बाप, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग, चैट जीपीटी, फलाना ठिकाना। अब आप सुन रहे हो दुनिया भर के, आप जो बता रहा हूं बहुत गौर सुनना, ये 20 मिनट का जो टॉपिक है आपके रोंगटे खड़े कर देंगे बहुत। अगर आप भविष्य के लिए चिंतित हो, अपने बच्चों के लिए, दिस इज नॉट सेशन फॉर यू ओनली, दिस इज आई मेड फॉर एंटायर नॉन पर्सन, आपकी फैमिली, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, भाई, जितने भी लोग हैं। दिस इज आई ओपनिंग फॉर एवरीवन। आप मैसेज लेके जाओ, उनको समझाओ लाइफ के अंदर। समझ में आ रहा है? चैट जीपीटी का नाम सुन रहे हो आप? सब कुछ मिनटों में हो जाता है। एआई योर जॉब इन डेंजर। अगर आप जो नौकरी कर रहे थे या आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नौकरियां बहुत खतरे में है। इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले भविष्य का जो जॉब है, उनको तो नौकरी मिल भी गई, तुम्हारे बच्चों को तो नहीं मिलेगी। ये नोट कर लो। बहुत जो पढ़ा है 90 साल वाला पुराना ना, जिंदगी में नहीं मिलेगी। ये नोट कर लेना। और आज कुछ कर सकते हो अपने बच्चों के लिए इस बिजनेस के माध्यम से करके जाना कि तुम्हारे बच्चे 10 साल में बहुत स्ट्रगल करेंगे लाइफ के अंदर। ये कह रहा हूं, स्टाम्प पेपर लाओ, लिख दो बॉस, लिख दो अपने दीवान पे। द कमिंग 10 ईयर विल बी द बिगेस्ट चैलेंजिंग ईयर फॉर ऑल इंडियंस, पेरेंट एंड ऑल, राइट? ऑटोमेशन से नौकरियां जा रही है, ड्राइवरलेस कार आ रही है, पता ही आपको? अगर ड्राइवरलेस कार आ गया तो ट्रक, कार, ड्राइवर सबकी छुट्टी होगी कि नहीं होगी सर? नौकरी जाएगी? साला अभी से नहीं मिल रही थी, अब तो जाने वाली है मिलों की, राइट? 2009 में जो आदमी मूवी की शूटिंग ऐसे करता था, प्रोमो, आज वो काम ड्रोन कर रहा है। ये तो यही है। पायलट की नौकरी गई, कैमरामैन की नौकरी गई कि नहीं गई सर? आज ऊपर का शॉट कौन लेता है? हेलीकॉप्टर से लेता है क्या कोई? ड्रोन से ले लेता है, पट से बॉस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2030 तक क्या करने जा रहा है, ये वीडियो चला देना भाई। वॉल आवाज कर दो। Yes. A robot is building another robot. Elon Musk. Now we're entering a room where you'll see the future, where you'll see how far China has come in humanoid robotics. They're building an army in this room. So this is the newest robot that they got in the X robot. This is the new one. That's scary. Look at the skin. Look at the details. 这个是 Joe， 打个招呼。 Could they pose a threat to humanity one day? 哎，还有个这个嘛，哎。This is the first EX robot who can walk. For the future, they will have a full, complete robot humanoid one. In the future, they'll be used in fields like education and healthcare. They'll become part of society. In the future, the robots gonna build robots. So they think that the robot in the future, we can use it in education, in services, helping old people in hospitals. So he think that we really need robots in the future. She's looking at me. It means that in the future, we're gonna have more robots. More robots, and maybe we're gonna stop this. Yes. He said, like the machine, we never get tired from building robots. Think like a factory of building cars. Never stop. Never stop. 你们现在有几个机器人？总共 A robot is building another robot. Look how they're assembling the parts. ये डॉक्यूमेंट्री है बहुत एआई। Let's see how AI is being used. चाइना में धमाल हो रहा है आज के दिन। Look at all these faces behind you. So which one is his face? Look for it. Come. This one. Yes. I found it. क्या बोल रहा है?很像，很像。 Elon Musk. Elon Musk. Yeah.
He knows that his face here. It's made of what? Chocolate. It's made from silicon gel. Why is it huge? For them, they take it like an art. Did we just step into a Chinese village? This is like the traditional Chinese dress. These robots will also be used for tourism purposes.吓我一跳 You scared me. Put your hand. The doctor can just read your hand and tell you how your health is, if you're healthy or not. And here we are with the modern hospital. It's a robot making operation to a human. They cannot put a human there, so they just put a robot. So they hope that in the future, robots gonna have the human in the hospital, in operation, in medicine. मतलब समझ में आ रहा है आपको? जितने काम आज आप कर रहे हो, तुमको जो नौकरी मिल रही थी ना, वो सारे काम ये रोबोट इतने बना रहे हैं, AI जा रहा है, कितना भयानक इम्पैक्ट पड़ेगा। ये रिसर्च सुनो भैया वॉल्यूम कर दो। मैं से पूछा कि AI के आने के बाद जॉब्स का क्या होगा, लोगों को क्या फील होगा, तो सुनो। ओके, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इलॉन मस्क से पूछा कि AI के आने के बाद जॉब्स का क्या होगा, लोगों को क्या फील होगा, तो इस पर इलॉन मस्क ने कहा, देखो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ऐसी चीज बन रही है जो ह्यूमन से इंटेलिजेंट है। मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा है कि जॉब्स की कोई जरूरत होगी ही नहीं, लोगों के पास ऑप्शन होंगे, या तो वो जॉब ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। There will come a point where no job is needed. इवन गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग 300 मिलियन जॉब्स मिल जाएंगी 2030 तक। 25% जो रूटीन टास्क है वो ऑलरेडी AI खत्म कर चुका है। 83 मिलियन जॉब्स लॉस्ट होगी नेक्स्ट 5 इयर्स में। और ऐसे ना जाने कितने ज्यादा स्टैट्स ऑलरेडी पब्लिश होते हैं कि AI हमारी जॉब लेने वाला है। और ये सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं है, ये एक्चुअल में नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? एलन मस्क जैसा व्यक्ति बोला है कि आने वाले दिनों में जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बॉस, राइट? तो हम जो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने भविष्य में जो उनको बनाने के लिए कि पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, तुमको तो काम ही नहीं मिलेगा। अगर आपका बेटा 5 साल का है, 10 साल 15 साल का है, तो जो पढ़ाई आपने पढ़ाई है, ये इंडिया की कंडीशन, मोदी जी जो है इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क विद AI, राइट? ये हमारा AI का मिनिस्ट्री है, पूरा इसकी वेबसाइट है। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब देखिए कितना इंपैक्ट पड़ेगा। फूड प्रिपरेशन, जो लोग खाना बनाती हैं, 80% 60% जॉब विल बी लेफ्ट। जो दाई घर में खाना बनाते हो, आप कुक रखते हो ना, 60% कुक की जरूरत खत्म हो जाएगी। आगे दिखाता हूं आपको कितना जॉब इफेक्ट करेगा। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, ड्राइविंग, एग्रीकल्चर, गारमेंट मैन्युफैक्चर, पर्सनल केयर, सेल्स, कस्टमर सर्विस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, अपर मैनेजमेंट, टेक्नीशियन, इतना परसेंट है इम्पैक्ट करेगा। 60, 50, 60, 30 करके, राइट? भैया साउंड देना, देखो। फ्रेंड्स, सी अब आपको फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्प, ड्राइवर, कुक, मेड की जरूरत नहीं, क्योंकि 12 लाख में ये आपके लिए सब कुछ करेगा। जी हाँ, 12 लाख में दिस रोबोट कैन लिटरली डू एनीथिंग यू वांट। नेक में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमरा है, शोल्डर्स में, एल्बो में, रिस्ट में, हिप में, ये खाना बनाएगा, ड्राइविंग करेगा, घर का साफ पोछा मारेगा, इससे 12 लाख। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसका मूवमेंट बहुत अच्छा है। लेट के ऊपर खड़ा भी हो सकता है, इसका बैलेंस अच्छा है। यू कैन ट्राई एंड शेक इट, इट कीप्स बैलेंस। ये सर्व कर सकता है। दे आर सेइंग इवेंचुअली इसमें होगा दैट इट कैन इवन ड्राइव। इट हैज अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑलरेडी built in. You can see the walk that it's doing from here to here. इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इन्होंने काफी चीजें curtail की हैं, walking backwards also. बातें आपके साथ कितनी कर सकता है वो, मेरे से आके ये जब है शेक हैंड करेगा, इसने recognize कर लिया है मेरे को, yes yes मैं वही हूँ famous gadget guru from India. You are absolutely right. So you can see that it can do a lot of things क्योंकि जो level of sensors, motors, cameras इसमें इन्होंने डाले हैं, they are a lot. So are you now ready for a humanoid robot? वो बोल रहा है आपको, that's his sales pitch. बोल रहा है, take me home, 12 लाख रुपए में I'll replace your friends, your relatives and every other human in the entire world. Are you ready? बताना मेरे को comments में, is this going to be the next
माय गॉड, 12 लाख रुपए दो, जिंदगी भर कुक की टेंशन नहीं, सर्वेंट की टेंशन नहीं, ये साला गाड़ी भी चलाएगा, खाना भी बनाएगा, घर का पोछा भी लगाएगा, और रात को 2 बजे भी बोलो तुम नाटक नहीं करेगा, छुट्टी नहीं लेगा। तो 12 लाख रुपए में आदमी इसको लेगा कि इंसान को लेगा? तुम मुझे बता दो यार। 5 साल इंतजार करिए, सिर्फ 5 years लेफ्ट बाय 2030 दिस विल सी इन इंडिया एवरीवेयर माय डियर फ्रेंड। आने वाला टाइम इज नॉट इजी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ आवर अपॉर्चुनिटी? दुनिया में नौकरियां जाएंगी, हमारी दुकान खुली रहेगी। आओ 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 आओ। क्या होगा? देखिए क्या बोल रहा है, योर जॉब, और अगर मान लो कि रोबोट है, बोलता कल से तू कोई घर में झाड़ू पोछा वाली है, रोबोट खड़ा होगा, तुम्हारी नौकरी आज से मेरी है। नौकरानी गलत क्या होगी? बहुत बड़ी सच्चाई। ट्राई टू फील दिस। भैया वीडियो प्ले करना। ये वीडियो प्ले कर दो। कल लगा के ये कला सीखने में, और अब बस टेक्स्ट टाइप करके ये काम हो रहे हैं। ये कॉफी मशीन बिल्कुल सही कॉफी बना सकती है, अब आपकी जरूरत नहीं है। इट्स ओके सर, यहाँ काम करके अच्छा लगता था सर। मैंने इतनी मेहनत और पैसा लगा के सीखा था, और अब गाने 2 मिनट में बन रहे हैं। अब ये गाड़ी खुद चलती है, मुझे अब ड्राइवर की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं सर, आपकी गाड़ी चलाना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये हमारे पूरे जीवन की बचत है। मैंने ये दिन फोटोग्राफी कोर्स के लिए ये संभाल कर रखा, अब दिल लगाकर सीख जिंदगी लगा देंगे। मैंने पूरी जिंदगी इस दिन के लिए पढ़ाई की थी, टीचर बनने का सपना देखा था। अब जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैंने बरसों तक इस रसोई में काम किया, हर दाग अपने हाथों से मिटाया। वेरी इमोशनल थिंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आने वाले कल का ग्लिम्स है, ठीक है? तो दुनिया बदल रही है, और जो नहीं बदलेगा वो सरवाइव नहीं करेगा, ये ख्याल रखिएगा। राइट? मैंने आपको बोला था, टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर टुडे, ठीक है? आपका आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एआई आने के बाद क्या है? एम्प्लॉयमेंट जितनी प्रॉब्लम थी, उससे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी नौकरी तो है, और आप उसे काबिल नहीं रहोगे लाइफ में। और अभी 20 साल इंडिया में चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट करिकुलम पे आ रही है। 15-20 साल नई कोर्सेस सब गवर्नमेंट चेंज कर रही है इंडिया के अंदर। तो 10-15 साल बहुत स्ट्रगलिंग है आने वाला आपके बच्चों के लिए बॉस। राइट? आज ही कुछ बिल्ड कर सकते हो। आउट ऑफ 10 4 बच्चों को आज तक पता ही नहीं है कि एआई से हमारे साथ क्या इंपैक्ट गिरेगा। 50 लाख स्टूडेंट दे आर गेटिंग ग्रेजुएट एवरी ईयर, एंड 50% ग्रेजुएट इंडियन दे आर अनएम्प्लॉयबल। यानी अगर मान लीजिए हर साल, पता है आपको, अगर आज इंडिया में 1.5 करोड़ लोग हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग, और 75 लाख लोग हर साल काबिल नहीं मिलेंगे 2020 के जॉब के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनेस्को की चेयरमैन कह रही है। 54% साउथ एशियन यूथ, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब मिला लो, दे आर अनफिट फॉर 2030 जॉब बाय 2023। यानी 2030 तक का जो जॉब आने वाला है, 54% जो एशियन यूथ है वो काबिल ही नहीं है इसके। उज्जवल पट्टी से क्या बोलते हैं? भारत पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का देश बन जाएगा। स्किल नहीं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं। ये वीडियो ऑन करना नहीं, छोड़ दो। आज भारत में इंडिया इज नॉट हैविंग इनफ जॉब।
वैकेंसी आर क्लोज्ड। अब देखिए मजे की बात, नौकरी है मगर स्किल नहीं है, तो आप उस पार पहुंच ही नहीं सकते हो जीवन के अंदर। पहले क्या होता था, 10 लोग जब एजुकेशन लेते थे तो 8 को नौकरी मिल जाती थी। अब क्या हो रहा है, 10 के 10 को नहीं मिल रही है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना अपने। आप सोचो अगर आपका बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद अनएम्प्लॉयड हो तो आपको कैसा लगेगा लाइफ में। आज भी के पेरेंट हमें सोचना है कि आज हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो वी बिल्ड समथिंग फॉर देम। हम आज उनके लिए एक रास्ता बना ले ताकि हमारे बच्चों को काम न मिले, हमारा काम ही वो पूरा करे बस लाइफ के। हर जगह रिजेक्शन है। देखिए क्या लिखता है, बेरोजगारी पर विश्लेषण, 50% इंडियन ग्रेजुएट बेरोजगार, ITI 66%, पॉलिटेक्निक 72%, बी फार्मा 43% अनएम्प्लॉयड। The total unemployment youth has almost double, 30.25 to 60.5.7। यानी पहले 35% लोग बेरोजगार होते थे, अब 67% लोग इस देश में बेरोजगार हैं। इस दुनिया इस देश के अंदर नियर 83% ऑफ जॉब प्लस इंडियन आर यूथ, यानी 83% भारत में जो यूथ है उसके पास काम नहीं है। 1.5 मिलियन, यानी हर साल 15 लाख ग्रेजुएट इंजीनियर जो है वो ग्रेजुएट निकल रहे हैं और 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल। क्या किया हमने अपने बच्चों के साथ, पता हम क्या करने वाले हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग, 80% को काम ही नहीं मिलेगा बॉस। 93% MBA ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयबल, यानी MBA करने वाले 100 में 93 लोग आने वाली नौकरी के काबिल नहीं रहेंगे बॉस। 36% IIT, कितना बड़ा नाम हुआ करता था पहले, खड़गपुर फलाना ठिकाना, आज फेल टू गेट प्लेसमेंट। ओवर 23 लाख पीपुल, 23 लाख लोगों ने 368 प्यून की नौकरी के लिए साला अप्लाई किया है और जिसमें से 255 PhD होल्डर है, 2 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट है। सोचिए चपरासी की नौकरी के लिए यूपी में नौकरी आई थी, 368 जॉब के लिए 23 लाख लोगों ने आवेदन दिया क्योंकि काम नहीं है, जिसमें IIT वाले 12.9, UPSC वाले मतलब जिन्होंने कभी IAS बनने का सपना देखा था वो 4.6, कैट 1.7। मतलब आने वाले दिनों में इंसान की हालत बहुत खराब होनी है। ठीक है, द वर्ल्ड इज चेंज बैडली। ओवर 93% कैंडिडेट इंक्लूडिंग 3700 PhD अप्लाई फॉर अ जॉब। ये देखिए 7000 ग्रेजुएट इंक्लूडिंग MSc, BE, BCom, BSc अप्लाई फॉर द सैनिटरी वर्ड। झाड़ू मारना साला कलकत्ता के सड़कों पर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट होकर अगर इसके लिए अप्लाई, लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं पता है आपको, राइट? दे आर नॉट एबल टू गेट अ गुड जॉब। 83% युवा पढ़े लिखे बेरोजगार। भारत लेबर मार्केट 5 करोड़ लोग हो जाएंगे ग्रेजुएट जो सिर्फ लेबरी का काम करेंगे। 2030 तक भारत में 10वीं पास 30 करोड़ युवा होंगे और उसमें से 83% बेरोजगार होंगे बॉस। ये नोट कर लो लाइफ के अंदर। ये देखिए 2024 सितंबर का आंकड़ा है, 7.8% अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये है, अच्छा मजे की बात क्या पता है, जो अनपढ़ है वो 2% बेरोजगार है, जो उस प्राइमरी किया वो 1.8, जो मिडिल क्लास वो 2.4, जो सेकेंडरी किया जो 10वीं वो 3%, हायर सेकेंडरी 7.4% और जो हायर एजुकेटेड है ग्रेजुएट वो सबसे ज्यादा 16% है बहुत बेरोजगार इस देश में। क्योंकि छोटा काम तो करेंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई कर लिया है ना, अब झाड़ू कैसे मारेंगे लाइफ के अंदर। आज 75 करोड़ इंडिया की यूथ पॉपुलेशन है। अब मैं आपको बता रहा हूं गेम चेंज। ये 75% लोग जो यूथ है, 75 करोड़ लोग इस देश में यंग है, बिलो 25-30 ईयर्स। दोस्तों ये फोर्स
जब इस इंडस्ट्री में घुसेगी ना, इंडिया गेम चेंज कर देगा पूरी इंडस्ट्री का बॉस।